What is concept of entrepreneurship? Entrepreneurship का concept क्या है? Now write the heading, concept of entrepreneurship. The word entrepreneurship is derived from the word entrepreneurship is derived from the French word entreprendre, entreprendre, entrepreneur, which means to undertake, जिसका अर्थ होता है कोई चीज़ अपने अंदर करके काम करना. डैट मीन्स किसी चीज़ पे अपना कंट्रोल होना और उसको अपने अकॉर्डिंगली पूरा उस काम को प्रोसेसेस में लाना. दिस रेफर्स टू दोज who undertake the risk. This refers to those who undertake the risk of new enterprises. An enterprise is created by an entrepreneur. An enterprise is created by an entrepreneur. The process of creation is called entrepreneurship. Entrepreneurship is a process of action of an entrepreneur who is a person always in search of something new and exploits such ideas into gainful opportunities by accepting the risk and uncertainty with the enterprise. Now again I am repeating this line. Entrepreneurship is a process of action of an entrepreneur who is a person always in search of something new. कोई नई चीज़ की तलाश में रहती है. वो एंटरप्रेन्योर ज़्यादा सक्सेस होते हैं जनरली जो कुछ नया बनाते हैं, कोई नई चीज़ मार्केट में लाते हैं, कोई नया तरह का काम करते हैं या कुछ नई न्यू क्रिएटिविटी अपने काम में दिखाते हैं. एंड एक्सप्लॉइट सच आइडियाज़ इनटू गेनफुल अपॉर्चुनिटीज़ बाय accepting the risk and uncertainty with the enterprise. अगर कुछ नया लाते हैं मार्केट में, कभी कोई नई चीज़ डेवलप की जाती है, नया कोई चीज़ इन्वेंट किया जाता है तो उसके साथ रिस्क फैक्टर भी होता है कि जिसमें भी कोई लोग लाइक करेंगे, नहीं करेंगे या किस तरह से लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे. तो जो एक एंटरप्रेन्योर होता है उसका सबसे बड़ा क्वालिटी, सबसे बड़ा उसके लिए एक उसके लिए कह सकते हैं हम कि उसको एक इस चीज़ के लिए हमेशा तैयार होना है, जोखिम. जो एक हम मार्केट में कोई भी चीज़ लाते हैं, कोई भी काम करता है तो एंटरप्रेन्योर को कभी भी कोई भी काम के लिए रिस्क लेने हमेशा तैयार होना होता है. नाउ एंटरप्रेन्योर्स आर फ्रीक्वेंटली थॉट ऑफ एज Entrepreneurs are frequently thought of as national assets to be cultivated, motivated, and remunerated to the remunerated to the greatest possible extent. Now entrepreneurial development today has become very
significant, very significant, comma, in view of its being a key to economic development. The objectives of industrial development, the objectives of industrial development, regional growth and employment generation depend upon entrepreneurial development. Entrepreneurs are thus the seeds of industrial development, and the fruits of industrial development are greater employment opportunities to unemployed youth, increase in per capita capita जो हमारे इकोनॉमिक जो ग्रोथ होती है, पर कैपिटा इनकम, higher standard of living and increased individual saving, revenue to the government in the form of income tax, sales tax, export duties, import duties, and balanced regional development. Importance of entrepreneurship. The importance of entrepreneurship is a country and its economic growth is remarkable if countries declare it as a national asset. It will not be illegitimate asset. It will not be illegitimate, 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 full stop. Next para. Entrepreneurship is the indicator of country's economic development. Entrepreneurship is the indicator of country's economic development and social wellness, full stop. Next para. Not
only economic development, not only economic development, but it also provides jobs to the unemployed, increases the standard of living, inspires other people to become an entrepreneur and solve others problem and many more full stop. एंटरप्रेन्योरशिप जो एक उद्यम होता है, जो एक उद्योग होता है, इससे क्या होता है, ना सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, गवर्नमेंट को चीज़ें मिलती हैं, उनको इनकम टैक्स, सेल टैक्स, ये सारे आदि टैक्सेस मिलते हैं, उनके पास रेवेन्यू ज़्यादा है। इसके अलावा जॉब भी मिलता है लोगों को इंस्पिरेशन भी मिलती है कि वी कैन मेक आवर ओन जॉब, आवर ओन बिजनेस। एक एंटरप्रेन्योरशिप को देख कर के उनके अंदर आता है कि सामने वाला इतना सक्सेस हो रहा है, एक नई चीज़ डेवलप हुई है, किसी के माइंड में कोई आइडिया होता है, तो वो खुद भी एक अपना वर्क के हिसाब से, काम के हिसाब से एक अपना सेट कर सकता है। कोई भी गवर्नमेंट भी उसके बहुत सारी लोन देती है, बहुत सारी स्कीम्स प्रोवाइड करी है उसने, बहुत सारी बातें उनके साथ वो ज्वाइन करके उनको आगे के लिए फोर्स करती है कि नए उद्योग लगे, जो नए आइडियाज़ आ रहे हैं, जो नए वेंचर्स हैं, वो सब उनको स्थापित करें और लोग आगे राइज करें। इसी तरह से कोई समाज, कोई भी एक राष्ट्र उन्नत होता है नए नए आइडियाज़, नई नई चीज़ों में, हर चीज़ में वेरिएशंस ला के, और लोगों को उसमें रोजगार भी मिलता है, उन्नति होती है राष्ट्र की, देश की। सॉल्व अदर्स प्रॉब्लम एंड मैनी मोर। फर्स्ट ऑफ नाउ नेक्स्ट पैरा, therefore one can measure how to prosper a nation, PROSPER, prosper a nation is by analyzing how supportive that country is to its entrepreneurs. जहाँ की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होती है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, तरह तरह की स्कीम्स बनाती है उन लोगों के डेवलपमेंट के लिए, उनको लोन देने के लिए, उन लोगों को कुछ सब्सिडी, कोई चीज़ देने के लिए, तो वहाँ के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा आगे राइज करते हैं, बहुत ज़्यादा उद्योग लगाने की कोशिश करते हैं। जितने भी देखते होंगे नए नए जो स्टेट बने, जैसे झारखंड गवर्नमेंट ने बहुत से ज़्यादा लोगों को अपने यहाँ उद्योग लगाने के लिए, अपने यहाँ कुछ नए नए स्कीम्स लाने के लिए बहुत तरह की उन लोगों को सुविधाएं दी, बहुत तरह की चीज़ों में छूट दी, उनको टैक्स में, कुछ चीज़ों में उनको बेट भी दिया जाता है। तो इन सब से वो गवर्नमेंट ऐसे चीज़ें जो करती हैं, उनके यहाँ ज़्यादा उद्योग लगाने लोग इच्छुक रहते हैं। एंटरप्रेन्योर्स फुल स्टॉप, that much impactful it is in countries overall enrichment, ENRICHMENT, enrichment फुल स्टॉप। ये भी हम लोगों ने देखा इम्पॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड इट्स रिलेवेंस टू कैरियर ग्रोथ।